Hello, all the viewers out there. I warmly welcome you and thank you for tuning into the Mavi Coders. In the journey of learning C language, from the quite beginning level to the advanced level, today we'll be exploring about the memory units and we'll also unveil the importance of each memory unit in this lecture. So without any further delay, let's dive in. So before moving ahead, let's take a quick overview of what we are going to study in this lecture with the help of this block diagram. I have drawn a block diagram here representing the secondary memory, the main memory, the cache memory, and the CPU and the register memory embedded in it. So all too first, what happens is that whenever we write our program using and save it using the .c extension, specifically here I'm talking about the C language program. So whenever we save that C program with the .c extension, that program gets stored in the secondary memory of our computer. From there, that program is brought into the main memory for the further processing of that program, and from there it's brought in the cache memory, and from the cache memory it is sent to the register memory, and hence the ALUs or whatever the specific units required in it perform the specific action and the output is generated. So let's start with the first memory unit, that is the secondary memory. Secondary memory is that which is used to store the data permanently. Secondary memory is the non-volatile memory, means even when there would occur any power failure, the data kept in the secondary memory will remain as it is, means it will not get vanished out. तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी डेटा परमानेंटली डेटा को स्टोर करवाने में हेल्प आउट करती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल है. नॉन वोलाटाइल मतलब कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो वैनिश आउट नहीं होता अगर पावर चली जाती है या पावर फेलियर अकर होता है. फॉर एग्जाम्पल द HDDs एंड द SSDs, द हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड द सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. अब मैंने नोट बना के यहाँ पे दो चीज़ें लिख रखी हैं. लेट्स गो थ्रू दोज टू थिंग्स. That is, the first one note is these secondary memory devices have the capability to store large amount of the data. ये जो secondary memory devices हैं, these hard disk drives and the solid state drives, इनकी capability होती है large amount of data को store करने की. Second, the disadvantages of the secondary memory is that it has low read-write speed. Hence, ultimately, we can say that it has high access time, which overall makes its accessing slower as compared to the main memory, or I would say the primary memory. मीन्स कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इस पर अगर हमने कोई भी रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो काफ़ी स्लो होगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है. एंड हैंस इसमें से अगर कुछ भी हमने एक्सेस करवाना है, अगर डेटा एक्सेस करवाना है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा. So now let's understand what is main memory. Main memory is also known as the primary memory. It is a volatile memory, means the data stored in it gets erased out whenever the power is off, or we can say there occur any power failure or power outages. The data which is present in the main memory, more specifically I would say in the random access memory, that data gets vanished out. मतलब वो डेटा जो भी प्रेजेंट होता है वो क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा है मेन मेमोरी में वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता. जो हमने सेकेंडरी मेमोरी देखा था, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता था, लेकिन इसमें डेटा टेम्परेरली स्टोर होता है. I would like to say one more thing about this random access memory कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग अगर होनी होती है तो
तो उस प्रोग्राम को रैम के अंदर आना ही पड़ेगा। बिना रैम के अंदर आए कोई भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। हैंस दिस मेन मेमोरी, और आई वुड से दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी यूनिट। अब दो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट बना के लिख रखी हैं। लेट्स गो थ्रू दोज टू थिंग्स। दीज आर मेन मेमोरी इज़ कंपोज्ड ऑफ एरे ऑफ सेल्स। जो मेन मेमोरी है वो एरे ऑफ सेल्स से बनी होती है। ईच सेल इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। जो भी सेल होता है वो उसमें जो जो ईच सेल होता है वो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करवाने के लिए कैपेबल होता है। इट्स एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा इज स्लो बट इट इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेन मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है, बट इसमें एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा इज़ लो। इंस्टेड आई वुड हैव रिटन हेयर लो। मीन्स कि जैसे हमने देखा था कि जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं उनमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, टीवीज़ में या फिर उससे भी बड़ी यूनिट्स में। यूनिट्स भी हम देखेंगे मेमोरी की कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। और वहीं देखा जाए तो मेन मेमोरी में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। बट हाँ, एक चीज़ है कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है या जो एक्सेस करने की स्पीड होती है रैम की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरीज। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट जो रैम होती है वो काफ़ी कॉस्टलियर होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द रैम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो उससे ये फास्टर होती है। It fetches the data from the main memory and stores that data temporarily and transmit that particular data to the registers which are resided or contained in the CPU. कैश मेमोरी का काम होता है कि मेन मेमोरी से डेटा को फैच करना और उस डेटा को ट्रांसमिट कर देना टू द रजिस्टर्स विच आर रिसाइडेड इन द CPU. Basically what happens is that the cache memory stores the particular segments of the programs which are currently under the execution. Whenever any particular instruction is required by the central processing unit, it is made available to the CPU immediately by the cache memory. मतलब जो हमारा प्रोग्राम होता है, हम प्रोग्राम को प्रोसेसिंग करने के लिए उसे मेन मेमोरी में लेके आए थे। फिर अब मेन मेमोरी से हम कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स को उठा के कैश मेमोरी में लेके आते हैं, और मतलब जिनकी ज़रूरत होती है। और उन्हीं सेगमेंट्स में से जो पर्टिकुलर क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और उन्हीं सेगमेंट्स में से जो भी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टर को, वो वाली इंस्ट्रक्शन उसको सेंड कर दी जाती है फ्रॉम द कैश मेमोरी। हैंस वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड टू अटेन द सिंक्रोनाइजेशन विद द हाई स्पीड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और मेन मेमोरी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती एक्सेस करवाने की, तो होगा क्या कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, स्पीड्स का आपस में मिसमैच हो जाएगा और प्रॉपरली जो है प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। दैट इज़ वाई हम कैशे जो मेन मेमोरी है उससे थोड़ी कंपैरेटिवली फास्टर मेमोरी जो कि कैशे मेमोरी है उसमें डेटा को लेकर आते हैं, और वहाँ से CPU में जो रिसाइडेड होते हैं रजिस्टर मेमोरीज वो उनको फैच कर लेती हैं। कैशे मेमोरी की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो एज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स गो थ्रू द रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट memories. These are resided in the CPU. Basically registers are the flip-flops only, means registers are, or we can say the registers are the sequence of the flip-flops only. जो registers होते हैं वो fastest memory होते हैं और ये CPU में embedded होते हैं, और we can say present in the CPU. बेसिकली रजिस्टर्स होते कुछ नहीं है, फ्लिप फ्लॉप्स ही होते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस में, उसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक डिवाइस है जो कि 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करवाने में कैपेबल होती है, और इन्हीं सारे फ्लिप फ्लॉप्स के सीक्वेंस
को मिलाकर रजिस्टर मेमोरीज बनाई जाती हैं. That is, I have written here 2 notes. First one is, I have already discussed this one. That is, one flip-flop is capable of storing 1 bit of the data. Second, registers are the temporary storing memory devices. रजिस्टर्स में भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, इसमें भी डेटा टेम्परेरली ही स्टोर होता है. जो कि मैंने जो लास्ट में बताया था कि कैशे मेमोरी के अंदर प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेके आया जाता है और उस सेगमेंट में से जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे सीपीयू को प्रोसेसिंग करनी होती है वो इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर्स में लाया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज ये आपका एक प्रोग्राम था, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main फंक्शन है एक मेन ये, देन clr scr फंक्शन, देन printf, उसमें मावी लिखा है, फिर printf कोडर्स, फिर getch, clr scr फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब है क्या. फ़िलहाल अभी के लिए मेमोरी यूनिट समझने के लिए हम इस प्रोग्राम की हेल्प लेते हैं. सपोज़ कीजिए आपने ये प्रोग्राम लिखा और इसको .c एक्सटेंशन के साथ आपने सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया. जब आपने इस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया, फर्दर आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो इसकी प्रोसेसिंग के लिए इसको सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लेके आया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम को. फिर वहाँ से इस प्रोग्राम का कुछ सेगमेंट कैशे मेमोरी में भेजा जाएगा और उस सेगमेंट से भी जो भी इंस्ट्रक्शंस करंटली चाहिए होंगी एग्जीक्यूट करवाने के लिए सीपीयू को, वो इंस्ट्रक्शंस को कैशे मेमोरी से रजिस्टर मेमोरी में सेंड किया जाएगा. Now I have written one important question over here, that is, we have many memory units to store the data. What was the need to add registers as memory? मतलब कि हमारे पास मेन मेमोरी भी थी, है ना, कैश मेमोरी भी थी, सेकेंडरी मेमोरी थी, तो हमें रजिस्टर मेमोरीज़ को इंक्लूड करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें ऐसी क्या नीड थी कि हमें रजिस्टर मेमोरीज़ को अकाउंट में लिया गया. तो वही देखते हैं अब. The main memory is fast, but the arithmetic logic unit is much faster as compared to the main memory, and thus there is the requirement of the synchronization of speed of the memory and the ALU unit. मेन मेमोरी जो है वो फास्टर तो होती है, लेकिन जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो उससे भी ज़्यादा फास्टर होती है. हैंस रिक्वायरमेंट थी कि दोनों की स्पीड मिसमैच ना हो, दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज किया जाए. There was the requirement of a kind of memory whose speed would get synchronized with the arithmetic logic unit and thus registers came into account. मतलब जैसा कि मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि कोई ना कोई मेमोरी ऐसी होनी चाहिए जिसकी स्पीड CPU की स्पीड के साथ, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि ALU की स्पीड के साथ मैच कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं प्रोग्राम के ऊपर वो तो करने तो ALU नहीं है. तो अगर ALU के साथ स्पीड ही नहीं मैच होगी तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस को. हैंस रजिस्टर्स मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि मेमोरी की और क्या नाम जो है ALU की स्पीड सिंक्रोनाइज हो सके और जो ALU है वो प्रॉपरली अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके. Let us go through the certain units of memory. The first one is bit. A bit is the smallest unit of the memory. जो bit होती है वो memory की smallest unit होती है. It can either store 0 और 1, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था अल्टीमेटली जो भी कोड होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही सिंबल होते हैं, 0 और 1. जो सिंगल बिट है वो या तो 0 को स्टोर करेगी या फिर 1 को स्टोर करेगी. नेक्स्ट इज़ बाइट. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड बाइट. 8 बिट्स के ग्रुप को हम बाइट बोलते हैं. देन आई हैव रिटन अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, that is 1 KB is equals to 1024 bytes or 2 to the power 10 bytes, and similarly I have written all the data over here. You can take a screenshot of it. This brings us to the end of this video lecture. I hope you enjoyed it. In the next lecture we will be discussing about an interesting topic that is often asked in the interviews, that why C program is platform dependent. Thank you for tuning into Mavi Coders.